Hello students, good morning. Myself Shashi Rai from Green Valley English School. In class 11th political science, we are discussing about the chapter judiciary. In this chapter, we have discussed till the chapters, this exercise particularly match the following. In the online classes, we discussed that. Now, we will discuss the new topic, that is judicial activism. Have you heard of the term judicial activism or public interest litigation? Have you people ever heard the word public interest litigation or PIL or Janhit Yachika like terms or judicial activism? No, it's okay. Let's read. Both these terms are often used in discussion about judiciary in recent times. Nowadays, this term judicial activism is very much in news on a daily basis. Many people think that these two things have revolutionized the functioning of judiciary and made it more people friendly. Always people are appreciating the term judicial activism right now because it has revolutionized. A kind of revolution just came just because of this particular word. Also, the action behind this word, that is judicial activism. Means now judiciary is more active than previous days, and it is more people friendly. How it is friendly, we will discuss it later. Let's see. First of all, read a cartoon in which डाक हड़ताल कोर्ट ने हस्तक्षेप किया. Order, order, order means the postman, department of postman, the people belong to department of post, they were having a strike. Now the court interfered in that matter and said that you are not doing right, we will interfere. This is not right. As even in the online classes, I have discussed with you people that if the people of medical department or people of police or fire brigade, they will go on indefinite strike, what will happen? Then the court will interfere that this is not justified. You people are servicing the most essential things. You cannot go on strike. Have you ever heard that the people belong to the armed forces, they go on the some kind of strike? कभी पे को लेके, कभी छुट्टी को लेकर, कभी आपने सुना है कि पूरी सेना छुट्टी पे चलेगी, पूरी सेना हड़ताल पे चलेगी कि हम काम नहीं करेंगे? नो, यू कैन नॉट डू सो बिकॉज योर सर्विसेज आर मोर एसेंशियल देन एनीवन एल्स. उसी तरह पुलिस हुआ, उसी तरह फायर ब्रिगेड हुआ, इन द सेम वे हॉस्पिटल ऑल्सो. सो दिस वॉज अ कार्टून. लेट्स सी. The chief instrument through which judicial activism has flourished in India is public interest litigation or social action litigation. What is PIL or SAL? We are using the acronym form of this whole word, that is PIL and SAL. How and when it emerged? In the normal course of law, an individual can approach the courts only if he and she has been पर्सनली एग्राइव्ड मीन्स डिप्राइव्ड. अगर आपका कुछ अपना फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तभी आप कोर्ट को अप्रोच करते हो, अदरवाइज आप अप्रोच नहीं करते हो. फॉर मासेज आप अप्रोच कभी नहीं करते हो. आपका कुछ वायलेट होता है, आपका कुछ डिप्राइव्ड होता है, तभी आप कोर्ट को अप्रोच करते हो. दिस इज टू से अ पर्सन हुज राइट्स हैव बीन वायलेटेड और हु इज इन्वॉल्व इन अ डिस्प्यूट could move the court of law. जब आपके पर्सनल इश्यूज होते हैं या आपके राइट्स वायलेट होते हैं तभी आप अप्रोच करते हो कहाँ? कोर्ट को. आपका किसी के साथ डिस्प्यूट हो गया, ओनली इन दैट ड्यू कोर्स यू अप्रोच टू द कोर्ट. दिस कॉन्सेप्ट अंडरवेंट अ चेंज अराउंड 1979. और 1979 में एक चेंज होता है. इन 1979 द कोर्ट सेट द ट्रेंड when it decided to hear a case where the case was filed not by a agreed person but by other on their behalf. Means 1979 में एक ट्रेंड चलता है. वो क्या ट्रेंड रहता है कि एक एग्राइव्ड पर्सन जो है वो दूसरे की बिहाफ पे केस फाइल करता है. मीन्स इफ समवन इज नॉट डूइंग समथिंग टू मी बट आई एम थिंकिंग ही इज बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ समथिंग और हिज फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड. कहीं रास्ते पे मैं जा रहा हूँ, मुझे लगता है किसी पर्सन का फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है. अगर वो पर्सन इतना कैपेबल नहीं है तो मैं उस पर्सन की जगह जाके कोर्ट में एक लिटिगेशन फाइल करता हूँ. इसी लिटिगेशन फाइल को करते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. मीन्स ये मासेस के लिए हो रहा है या पब्लिक के लिए हो रहा है, किसी और इंडिविजुअल के लिए हो रहा है. एज दिस केस इन्वॉल्व अ कंसिडरेशन ऑफ एन इशू ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, इट एंड सच अदर केस केम टू बी नोन एज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. और जैसे इस केस में इन्वॉल्व है, कंसिडरेशन किया जा रहा है कि इशू ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, लोक हित जनहित में कोई केस है,
कहीं कहीं रोड नहीं बन रही है, कहीं पानी नहीं मिल रहा है, कहीं बिजली नहीं मिल रही, ये सब जनहित के काम है। अगर कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसे फंक्शंस गवर्नमेंट करती है, कुछ बनाती है, तो उससे सबका लाभ होता है, जितने भी लोग होते हैं, लोकहित के काम होते हैं। किसी एक इंडिविजुअल का लाभ नहीं हो रहा है, बट सोसाइटी एज ए होल सबका उससे फायदा हो रहा है। It and such other cases came to be known as public interest litigation। जो भी पब्लिक इंटरेस्ट के काम हो और इनसे रिलेटेड जब इशू होते हैं, उसमें जब कोई केस फाइल होता है, इट इज नोन एज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अराउंड द सेम टाइम द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो टुक अप द केस अबाउट द राइट्स ऑफ प्रिजनर्स। और उसी समय सुप्रीम कोर्ट एक और केस लेता है, वो खुद से बाय देयर ओन वो केस लेते हैं अबाउट द राइट्स ऑफ द प्रिजनर्स। जो जितने भी कैदी हैं, जितने भी जेल में रहने वाले लोग हैं, जिनको कारावास की सजा मिली है, उनके लिए क्या अधिकार है, व्हाट आर देयर राइट्स ऑफ प्रिजनर्स। दिस ओपन द गेट्स फॉर लार्ज नंबर ऑफ केसेज वेयर पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन्स एंड वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन सॉट जुडिशियल इंटरवेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग राइट्स, बेटरमेंट ऑफ लाइफ कंडीशन ऑफ पुअर। और यही क्या करता है, जो बहुत बड़ा गेट था कोर्ट का, जुडिशरी का जो कोर्ट का गेट था, वो ओपन हो जाता है उसकी वजह से। सो दिस ओपन द गेट्स फॉर लार्ज नंबर ऑफ केसेज वेयर पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन्स, जो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करना चाहते हैं, वो सभी आ गए, क्योंकि दरवाजा खुल चुका था कोर्ट का। जुडिशरी हैज ओपन देयर गेट्स कि आप आइए, जो भी पब्लिक वेलफेयर की चीज़ें हैं, पब्लिक इंटरेस्ट की चीज़ें हैं, वी विल डू एक्शन एंड वी विल इंटरवेन इन दोज कोर्सेज। एंड वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन सॉट जुडिशियल इंटरवेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग राइट्स, betterment of life condition of the poor। means what they sought intervention for, what they were soughting intervention for protection of existing rights। then betterment of life condition of the poor, what is the betterment of the life condition of the poor। जो गरीब थे, जो दुखी थे, उनकी लाइफ कंडीशन को बेटर करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते थे, उसके लिए जो भी पिटिशन आता था, वो सारे पिटिशन को इंटरफेयर करने की जुडिशरी तैयार थी कि हम वी विल इंटरफेयर इन सच केसेज। Now, protection of the environment and many other issues in the interest of public, चाहे प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट, इवन सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली इंटरफेयर किया था इन 2019। आपको याद होगा ड्यूरिंग दिवाली कि कैसे हमारे यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड, मोनो डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड की जो लेवल है वो अचानक बढ़ रहे हैं। क्या गवर्नमेंट स्टेप ले रही है फॉर इन्वायरमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट के लिए और पब्लिक हेल्थ के लिए। ठीक, PIL has become the most important vehicle of judicial activism। इसीलिए जो PIL है वो most important vehicle है judicial activism के लिए। Judiciary is an institution that traditionally confined to responding the cases brought before it, began considering many cases merely on the basis of newspaper reports, postal complaints received by the court। पहले क्या था, जुडिशरी हमेशा उसी के ऊपर डिस्कशन करता था, उसी के बारे में रिस्पॉन्स करता था जो केसेज उनके सामने लाए जाते थे। बट नाउ इट हैज चेंज द होल सिनेरियो। हाउ इट चेंज, नाउ द जुडिशरी आल्सो कंसिडरिंग दोज केसेज दैट आर कमिंग ऑन द बेसिस ऑफ न्यूज़पेपर। कहीं न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल आ गया, ऑन दैट बेसिस दे स्टार्टेड कंसिडरिंग दीज आल्सो एज केसेज एज वेल एज पोस्टल कंप्लेंट्स। इफ यू आर थिंक सम इशू इज रिलेटेड विद द